Hello everyone. So we are studying the sixth chapter that is beginning with C++. Okay. So we are studying the sixth chapter that is beginning with C++. Okay. And that chapter is entirely finished. Only a small concept is remaining that I will explain you, and then we will start with the seventh chapter. Okay. So let me share the screen. There is a small concept that we will discuss, and then we will start the seventh chapter. So let me share the screen. Yeah, good afternoon, Vishal. Yeah. So basically all these things we have covered. So you can see that declaration of variables is a section. Okay. The 6.11 is basically the last topic of the sixth chapter, declaration of variables. So what it is written, let's see. In C, all variables are declared at the beginning of the program. In C++, this is true, but it is also allows the declaration of variables anywhere in the program. For example, integer main, and then we have integer xy, and then c in x, c in x, y, then sum x plus y, and then c out sum. Okay. So basically, now let me stop sharing the screen. I will explain this, and now let us see, move to the seventh chapter. Yeah, so we will now study the seventh chapter after this topic, that is operators, expressions, and control structures. Okay, so let me stop sharing screen. So let us see what he is saying actually. What is the topic? Basically, he is trying to say that suppose we have a program like I am not writing the header files. I write like void main. I write void main. Okay, and then inside void main, suppose I declare two variables, integer x and then y. Okay, and then suppose if I print something like print sum is, okay, and then suppose I want to enter sum of these two numbers. So basically, or you can say instead of x comma y, I suppose to write here is like scanf. Okay, so we are talking about the C basically. Okay, we are basically talking about the C, so we are using scanf percentage d, and then we can use again percentage d, and then we can use ampersand the x and ampersand y. Okay, so now suppose if I want to print the sum of these two variables, so what should I do? I should do integer sum. Okay, I take one more variable integer sum, and then I write sum is equal to, or here also I can write sum is equal to x plus y. Okay, and then in the next line I write printf percentage d, and I can print sum. Okay, so basically this was a C program get ch. But actually this thing is not allowed in C. What it is saying in the book is that this thing is not allowed. Why? Because the variable you are creating integer sum is basically on the third line. But what he is saying is that all the variables should be declared on the beginning lines only, है ना? जहां पर आप वेरिएबल्स की डिक्लेरेशन करोगे वहीं पर ही करना है. तो आप या तो यहाँ कर दो या इसके नीचे एक और लाइन लिखकर इंटीजर सम लिख दो. ठीक है, आप ऐसा नहीं कर सकते कि आपने स्कैनएफ चालू कर दिया, प्रिंट चालू कर दिया, प्रोसेसिंग स्टार्ट कर दी और उसके बाद आपने कहीं जो है एक वेरिएबल डिक्लेयर करा इंटीजर सम. सो बेसिकली व्हाट it is the solution of this problem. Basically he is saying that whatever written in the book is that basically this line will produce an error because you cannot declare a variable at this stage. If you want to create a variable, create at this stage only. Okay, so what is the solution? I should write something like this: sum is equal to x plus y, and here only I can write sum. Okay, so here only I can write sum, or instead of I can write sum in the next line also. So I can write integer xy, and in the next line I can write integer sum. So basically they both are the same thing. But after the processing start, सर आप मुझे दिखाई ही नहीं दे रहे, दिखाई नहीं दे रहा आपको क्यों? और किसी को भी दिखाई नहीं दे रहा क्या? मैं है और कौन है यहाँ पे? कोई है यहाँ पर? कोई सुन रहा है? दिखाई दे रहा हूँ मैं, सुनाई दे रहा हूँ, सुनाई दे रहा हूँ, दिखाई दे रहा हूँ? रिप्लाई कर दो यार, यस और नो. कौन है यहाँ पर? अरे इतने लोगों को ही तो रिप्लाई कर दो. बहुत क्लियर है ना? चलो
बहुत लेट करते हो रिप्लाई करने में, ठीक है, सब सही है ना, तो दिख रहा हूँ मैं, ऐसी बात नहीं है, दिखाई दे रहा हूँ, ठीक है, सुनाई भी दे रहा हूँ, दिखाई भी दे रहा हूँ, ठीक है। So what basically what is written in the book is that basically this is an error, okay. So basically if you want to declare all the variables, you should declare all the variables at the beginning of the program, okay. So it is written in the book, okay. So this is not allowed in C basically, okay, as per written in the book, okay. But yeah, in C++ you can do like this. So whatever we were doing earlier, like integer sum is equal to x plus y. So this thing is valid in C++. You can do like this also. So you can declare a variable actually at the place it is needed, है ना। सम की हमको यहाँ जरूरत है तो यहीं पर ही हमने क्रिएट कर लिया, है ना। जहाँ पर हमको सम की जरूरत पड़ी, हमको यहाँ एक वेरिएबल की जरूरत पड़ी तो हमने यहीं क्रिएट कर लिया। हमने ऐसा नहीं कि शुरू में गए और वहाँ जाकर क्रिएट करा, नहीं, यहीं पर ही क्रिएट कर लिया। So basically this thing is valid in C++, and C++ also supports scanf and printf function. So basically this is a C++ program and it will work, okay. But basically, or you can use that in C++ instead of scanf, we can also use like this. So C in X, and like you can also write here in the next line, you can also write C in Y. So basically instead of scanf, I can use C in X and C in Y. And instead of printf, I can write, or here we are also leaving our earlier turbo C++ compiler, and now we are basically moving to GNU compiler or G++ compilers, okay. So we have dropped that void main and get ch functions, and now we are using the return 0, okay. So this thing we have discussed already कि अब हमने जो है टर्बो C++ कंपाइलर जो यूज कर रहे थे उसको छोड़ दिया है, और जो एक्चुअल में जो हमारे C++ प्रोग्राम या जो प्रोग्राम आजकल जो बनते हैं उसी मेथोडोलॉजी को अडॉप्ट कर लिया है, ठीक है, यहाँ जाकर। सो हियर आई कैन प्रिंट लाइक दिस C out and then I can print sum, okay. So instead of printf I can use sum. So basically he is saying that this thing is not valid in C because you should declare a variable at the beginning of the program और एट द ऑल द डिक्लेरेशन एट द फ्रंट ऑफ द मेन फंक्शन, और मेन फंक्शन के जस्ट अंदर आपको जो है वेरिएबल डिक्लेयर करने होते हैं। लेकिन C++ में जहां आपको जरूरत है वहां पर आप कर सकते हो, ठीक है। तो ये ऐसा कह रहे हैं, लेकिन ये सही नहीं है ना, जो बुक में लिखा हुआ है वो सही नहीं है, वो चीज गलत है, ठीक है। एक्चुअली दीज स्टेटमेंट्स वर ट्रू, ये 20 साल पहले की बातें हैं, जब ऐसा हुआ करता था कि ये जो बात कह रहे हैं वो सच हुआ करती थी, है ना, कि ऐसा होता था, लेकिन वो सब 20 साल पहले की बातें हैं। अभी अगर आप देखोगे तो सी में भी अगर आप यही प्रोग्राम लिखोगे ना, इसमें प्रिंट एफ की जगह स्कैनएफ और सीन की जगह स्कैनएफ यूज कर लोगे तो भी वर्क करेगा, क्योंकि सी के वर्जन्स भी चेंज हो चुके हैं ना। ऐसे नहीं है कि सी जो है 40 साल पहले जो सी आई थी आज भी वही सी है, सी में भी डिफरेंट वर्जन्स आ चुके हैं, लेटेस्ट सी आ चुकी है ना, सी के वर्जन्स आते रहते हैं अलग अलग। तो जो सी के जो लेटेस्ट वर्जन है उसमें ये प्रॉब्लम नहीं है, आप यहाँ पर भी अगर वेरिएबल डिक्लेयर करोगे तो भी चल जाएगा, ठीक है। तो लेटेस्ट सी में प्रॉब्लम नहीं है, और ये चीज कंपाइलर पे भी डिपेंड करती है, ठीक है। तो पुराने जो आपके टर्बो कंपाइलर्स थे वो अब यूज में नहीं आते, तो लेटेस्ट कंपाइलर्स में भी ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। तो बेसिकली दोनों चीजें, लैंग्वेज का भी सपोर्ट है, इवन सी लैंग्वेज है वो भी अब आपको ऐसा करने देती है कि आप जहां पे जरूरत है वहां डिक्लेयर कर लो, और कंपाइलर्स भी जो है आपके सपोर्ट करते हैं इस चीज को, ठीक है, आप कहीं पर भी डिक्लेयर कर लो। तो ये बहुत पुरानी बातें थी, लेकिन बुक में लिखा हुआ है, अगर आपके एग्जाम में आता है तो आप वही चीज लिख देना, ठीक है, लेकिन ये सच नहीं है, ठीक है। तो ये चीज मैं आपको बताना चाह रहा था कि बुक में बहुत सारी मिस्टेक्स है, पुरानी बुक है, कॉपी पेस्टेड कंटेंट है ना। तो ये जो बुक में लिखा हुआ है ये सच नहीं है, लेकिन आपको एग्जाम के हिसाब से यही सच है, एग्जाम में आएगा तो आपको ऐसे ही लिखना है, ठीक है। चलो, नाउ लेट्स मूव ऑन टू द 7th चैप्टर। So we have now operators, expressions, these things, okay. So now let's start about the operators, okay. तो हमारा जो है टॉपिक क्या है, अब हमारा 7th चैप्टर है बेसिकली। नाउ वी हैव चैप्टर 7 and we have now operators, expressions, these types of things, okay. So let's start. Yeah, so let's start with the operators. What are the operators? Operators are basically like the operators we use in the mathematics. Basically those are the same operators we use in our programming languages, like plus is an operator, minus is an operator, multiplication is an operator, division is an operator, and we have another operators like size of is also an operator, okay. ये क्वेश्चन आ सकता है जैसे एग्जाम में, क्योंकि थोड़ा सा अलग दिखता है ना। साइज ऑफ जो होता है जिससे हम साइज कैलकुलेट करते हैं ना, अभी सेकंड चैप्टर में हमने लास्ट में जब डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन कर रहे थे तो साइज ऑफ ऑपरेटर का यूज किया था, ठीक है। तो जो भी रेगुलर लेक्चर अटेंड कर रहा है उसको पता होगा कि हमने डिस्कस किया था कि साइज ऑफ भी जो है आपका एक ऑपरेटर होता है, ठीक है। तो ये
कैसे काम करता है, आपको किसी की भी साइज चाहिए आप ऐसे लिख दो तो ये बता देगा कि भाई इंटीजर की साइज कितनी है ना, कैरेक्टर लिख दो तो बता देगा कि कैरेक्टर की साइज कितनी है। तो साइज ऑफ इज ऑल्सो नॉन एज बेसिकली एन ऑपरेटर, ठीक है। तो ये जो है हमारे ऑपरेटर्स, ऐसे बहुत सारे ऑपरेटर्स होते हैं ना सी में। तो व्हाट ही इज सेइंग दैट बेसिकली ऑल द ऑपरेटर्स जो कि सी में हुआ करते थे, जो आपने 11th क्लास में पढ़े होंगे, जो ऑल ऑपरेटर्स आपने सी में पढ़े हैं, सी लैंग्वेज में है, वो सारे के सारे सी प्लस प्लस में भी काम में आते हैं ना। वह ऐसे के ऐसे सी प्लस प्लस में काम में आ जाते हैं। तो ये सारे ऑपरेटर सी प्लस प्लस में भी ऐसे ही वर्क करते हैं जैसा सी में करते थे, बट सी प्लस प्लस हैज मोर एडिशनल ऑपरेटर्स, ठीक है। सी प्लस प्लस में कुछ एडिशनल ऑपरेटर्स भी है ना, वो सब भी हम देख ही चुके हैं। कौन कौन से देख चुके हैं, देखो एक तो हमने ये वाला देखा था ना, एक हमने आपका ये वाला देखा था। ये कहाँ यूज होता है आपका सी आउट में ना, सी आउट आपको करना है एक्स, और ये आपका कहां से आ गया, ये आपका आ गया सी इन एक्स, ठीक है। तो बेसिकली ये दो हैं, ये भी आपके क्या है ऑपरेटर्स ही है ना। ये क्या करता है, स्कैनएफ का काम करता है, नीचे वाला क्या करता है, प्रिंटएफ का काम करता है, ठीक है। देखो अगर जैसे ये वाला है, इसको आप क्या बोलते हो, इसको आप बोलते हो एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर, और इसको आप बोलते हो इंसर्शन ऑपरेटर, ठीक है। हमने बात करी थी पहले, ये आपका इंसर्शन ऑपरेटर होता है, दिस इज ऑल्सो नॉन एज इंसर्शन ऑपरेटर, एंड दिस इज ऑल्सो नॉन एज एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर, ठीक है। सब कुछ बुक में लिखा हुआ है ना। तो हम 6 चैप्टर कवर कर चुके हैं। 6 चैप्टर में केवल 3-4 पेज ही है ना, 4-5 पेज है केवल बुक में 6 चैप्टर में ना, 4-5 होंगे 6-7 होंगे ऐसे ही है ना। तो आप क्या करना कि सारा एक्सप्लेन मैं कर ही चुका हूँ, अब आप उसके नोट्स बना लेना, ऐसे कि ऐसे जो है छाप देना। अगर किसी को समझ में आ रहा है अच्छे से लिखना है तो अच्छे से लिख लेना अपनी मर्जी से, नहीं तो कम से कम छाप लेना उसको ऐसे कि ऐसे, ठीक है। अपनी बुक में 4-5 पन्ने सारे मैं अच्छे से एक्सप्लेन कर चुका हूँ। जो कॉन्सेप्ट मैंने यहाँ बताए, जैसे कि एन्यूमरेशन में अपन ने वाला एग्जाम्पल लिया था, कि आईडी कार्ड का एग्जाम्पल लिया था, एयरटेल की सिम का है ना, तो आप सारे वो एग्जाम्पल उसमें इंक्लूड कर सकते हो जो भी आपको अच्छा लग रहा हो। जो भी 6 चैप्टर में 4-5 पेज है उसको छाप लो और नोट्स कवर कर लो, ठीक है। सब मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ, ठीक है। अब ये 7 चैप्टर है, इसमें भी 3-4 पेज है, 2-3 दिन में अंदर ये भी चैप्टर खत्म हो जाएगा, तो 3-4 पेज है, इसके भी लिख लेना ना। तो अब वो लिखने में टाइम क्यों वेस्ट करें जब पहले से लिखा हुआ ये वो सब आपको बस अपनी कॉपी में राउट करना है। एक्सप्लेन तो मैं सारा कर ही रहा हूँ ना, एक्सप्लेनेशन प्लस अगर यहाँ लिखूंगा तो फिर डबल टाइम वेस्ट हो जाएगा अपना, तो वो अवॉइड करते हैं। जहां प्रोग्राम्स आएंगे, सेकंड चैप्टर पूरा ही हमने यहीं पर ही कराया, सेकंड चैप्टर में बुक खोल के भी नहीं देखी थी, क्योंकि वो थे ही प्रोग्राम सारे बनाने ही थे बोर्ड पर, करने ही थे सॉल्व। लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है तो इसलिए अवॉइड कर रहे हैं उसको, ठीक है। तो देख लो, ये आपका हो गया एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर, ये हो गया आपका इंसर्शन ऑपरेटर। दूसरा क्या होता है, देखो अब ये हमने देखा था, ये आपका होता है स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर, इसको बोलते हैं आपका स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर, ठीक है। अब देखो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्कोप एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिजोल्यूशन। स्कोप को रिजोल्व करने वाला था, रिजोल्व का मतलब होता है बेसिकली सॉल्व कर देना ना। स्कोप में अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है कि कौन सा स्कोप क्या है क्या नहीं है ना, स्कोप क्या होता है, 2-3 तरह के स्कोप्स होते हैं, वो देखेंगे अभी नेक्स्ट टॉपिक वही आएगा कि क्या क्या स्कोप होता है और कैसे स्कोप को रिजोल्व करा जाता है, ठीक है। तो वही है, तो ये इसको बोलते हैं आपका, ये जो डबल कॉलन आपने लगा रखा है ना, एक कॉलन फिर उसके साथ में एक और कॉलन, इसको बोलते हैं आपका स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर, ठीक है। क्लास में बहुत ज्यादा यूज में होगा, जब हम क्लास पढ़ेंगे तो स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर बहुत ज्यादा यूज में आएगा, ठीक है। अभी इसके बारे में देख लेते हैं कि कहाँ इसका थोड़ा सा भी यूज आ रहा है, एक यूज देख लेंगे अभी, और क्या है इसमें या हाँ। तो अब इसी पे ही चलते हैं कि जो आपका स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर होता है क्या होता है, बेसिकली व्हाट आर द स्कोप्स एंड हाउ डज द स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर हेल्प्स टू रिजॉल्व अ स्कोप, है ना। तो इसका मतलब क्या आ गया कि रिजॉल्व करता है स्कोप की प्रॉब्लम को ना, स्कोप को रिजॉल्व करता है। देखो क्या होता है वो, लेट अस सी दैट। Now let us see, take an example. Suppose we have an example like this, or create a program. So here we have hash include IO stream, and then we have using namespace std. Using namespace std. Okay, and then we have integer main, and here we have, suppose now, or on top of this. So basically, probably you have used these type of things. Basically, suppose I declare a variable here, x is equal to suppose 10. I declare a variable here, x is equal to 10. So basically, this type of variable which I declare above the main function. So here my main starts. Okay. So this is my main function here. So all the declaration of all the variable declaration, if you declare some variable on top of the main function,
बेसिकली दिस इज कॉल्ड अ ग्लोबल वेरिएबल, है ना। तो ये जो है आपका क्या होता है, ग्लोबल वेरिएबल हो जाता है, इसको बोलते हैं ग्लोबल वेरिएबल। वो आए, देखो ग्लोबल का मतलब तो आप समझते ही होंगे ना कि एक ऐसा वेरिएबल जो सभी जगह अवेलेबल है ना, तो इसीलिए इसको बोलते हैं ग्लोबल वेरिएबल, क्योंकि ये सभी जगह अवेलेबल होता है। कैसे सभी जगह, देखो क्योंकि मैंने एक आया कि सी प्लस प्लस जो है आपका क्या होता है, फंक्शंस बहुत सारे होते हैं ना, इसमें फंक्शंस बनाते हैं, फंक्शन एक दूसरे से आप जो है कम्युनिकेट कर सकते हो, फंक्शन से कम्युनिकेट तो क्या कॉल करते हैं बेसिकली फंक्शंस को ना। तो जैसे ये एक फंक्शन बनाया मैंने ना, उसके नीचे जैसे हमने देखा था कि मैंने जीसीडी का एक फंक्शन बना दिया ना, उसके नीचे मान लो और कोई मैंने फैक्ट का ऐसे फंक्शन बना दिया ना, तो ये जो आपका वेरिएबल है x इक्वल टू 10, यहाँ पर भी आप यूज में ले सकते हो, यहाँ पर भी यूज में ले सकते हो, यहाँ पर भी यूज में ले सकते हो। दैट्स व्हाई इट इज नॉन एज अ ग्लोबल वेरिएबल, बिकॉज इट इज एक्सेसिबल टू ऑल द फंक्शंस यू हैव मेड, है ना। मेन फंक्शन है, इसके अंदर भी यूज में आ जाएगा, जीसीडी में भी आ जाएगा, फैक्ट में, तो पूरे प्रोग्राम में आपका ये वेरिएबल जो है अवेलेबल होता है यूज के लिए, ठीक है, वॉट एवर द वेरिएबल। अब देखो यहाँ अगर मैंने कोई वेरिएबल डिक्लेयर करा, सपोज मैंने एक वेरिएबल डिक्लेयर करा इंटीजर y इज इक्वल टू 20, ठीक है, y is equal to, so this variable is basically जो आप इसको एक्सेस कर सकते हो केवल मेन फंक्शन के ही अंदर एक्सेस कर सकते हो ना, मेन फंक्शन के बाहर एक्सेस नहीं कर सकते इसको, जीसीडी में भी एक्सेस नहीं कर सकते, फैक्ट में भी एक्सेस नहीं कर सकते आप इसको, केवल क्योंकि आपने केवल ये मेन फंक्शन के अंदर डिक्लेयर करा है, तो आप केवल मेन फंक्शन के अंदर ही इसको एक्सेस कर सकते हो, ठीक है। तो ये जो होता है आपका हो गया आपका लोकल वेरिएबल, है ना, कि जो मेन का जो है ना, जो मेन फंक्शन है, तो लोकल वेरिएबल बोल दो इसको। बेसिकली ये जो है आपका ग्लोबल वेरिएबल है, जो आपके सभी फंक्शंस में अवेलेबल हो जाता है, ठीक है। तो ये आपका ग्लोबल वेरिएबल होता है, ये लोकल है जो केवल है, तो यही आपके देखो स्कोप भी बन जाते हैं ना। तो ग्लोबल वेरिएबल कहाँ है, पूरे प्रोग्राम में आप कहीं पर भी ग्लोबल वेरिएबल को काम कर लो, ले लो, तो ग्लोबल वेरिएबल का जो स्कोप क्या हो गया कि वो एंटायर प्रोग्राम जो है आपका उसका स्कोप हो गया। और ये जो वेरिएबल आपने क्रिएट करा y, इसका स्कोप क्या है, जो आपका मेन फंक्शन है ये इसका स्कोप हो गया, कि मेन फंक्शन के अंदर आप इसको कहीं पर भी काम में ले सकते हो, तो मेन फंक्शन जो है इसका स्कोप है। और जो x है वो ग्लोबल वेरिएबल है, उसको आप एंटायर प्रोग्राम में कहीं पर भी काम में ले सकते हो, तो उसका जो स्कोप है वो पूरा ग्लोबल है ना। तो ये सारे डिफरेंट डिफरेंट स्कोप्स होते हैं। अब देखो हम मेन फंक्शन के अंदर भी और स्कोप बना सकते हैं, ठीक है, मेन फंक्शन के अंदर भी स्कोप बना सकते हैं ना। अब जैसे ये दो तो स्कोप हो गए, एक तो आपका ये पूरा स्कोप हो गया, और उस स्कोप के अंदर ही एक स्कोप है मेन फंक्शन वाला, है ना। तो देखो ये आपने देखा कि ये तो हमारा पूरा ग्लोबल स्कोप हो गया, और उस ग्लोबल स्कोप के अंदर मेरा एक और स्कोप आ गया मेन फंक्शन का, और उसी ग्लोबल स्कोप के अंदर जीसीडी भी एक स्कोप है, और आपका फैक्ट भी एक स्कोप है, और इसी मेन के अंदर भी मैं और स्कोप बना सकता हूँ अलग अलग। देखते हैं वो कैसे बनाते हैं, ठीक है। तो मैं नीचे वाला मिटा देता हूं क्योंकि स्पेस हमारे पास इतना नहीं है, तो ये नीचे का मैंने हटा दिया, ठीक है। अब देखो, तो मैंने जो है एक वेरिएबल क्रिएट करा आपका इंटीजर y, ठीक है, इंटीजर y इज इक्वल टू मैंने सपोज ले लिया 20, ठीक है। तो ये जो है मेरा जो है इस पूरे प्रोग्राम में अवेलेबल हो जाएगा ना, मेन फंक्शन के अंदर है। सपोज अगर मैं जो है एक और स्कोप क्रिएट करना चाहता हूं, तो वो मैं कैसे करूंगा, ऐसे कर दूंगा ना, एक ऐसे इस तरह से जो मैं करली ब्रेसेस का यूज लगाकर जो है एक और स्कोप ऐसे क्रिएट कर लेता हूं। अब अगर इस स्कोप के अंदर मैंने कोई वेरिएबल लिया इंटीजर z इज इक्वल टू 30, तो वो केवल इस स्कोप के अंदर ही वैलिड है, इस ये जो स्कोप है मेरा ये वाला, इसी के अंदर वैलिड है। अगर इस स्कोप के बाहर अगर मैं यहां पर z को यूज करने की कोशिश करूंगा, z इज इक्वल टू समथिंग, सो इट विल प्रोड्यूस एन एरर, वो वहां प्रोड्यूस कर देगा इसको। तो देखा आपने कि एक तो हमारा ग्लोबल स्कोप हो गया जिसमें सारे फंक्शंस का स्कोप आ गया, मतलब स्कोप के अंदर स्कोप चल रहे हैं ना, अलग अलग स्कोप वैसे नहीं आ रहा, तो एक ग्लोबल स्कोप हो गया, ग्लोबल स्कोप के अंदर अलग अलग 3 फंक्शंस के हमने स्कोप देखे, ऐसे मेन फंक्शन का पूरा ये स्कोप आ गया ना। तो y जो है पूरा स्कोप आ गया मेन फंक्शन का, जो y का स्कोप है पूरा मेन फंक्शन हो गया। लेकिन उसके अंदर अगर मैं इस तरह से करली ब्रेसेस का यूज कर लूं, तो उसके अंदर मैंने एक और स्कोप क्रिएट कर दिया ना, और उस स्कोप में मैंने अगर कोई वेरिएबल डिक्लेयर करा है z, तो उसको मैं वहां पर यूज में ले सकता हूं केवल। अगर उस स्कोप के बाहर z को यूज करूंगा तो नहीं आएगा। तो आप ये देखो कि मैं जो है y को यहाँ यूज में ले सकता हूँ, लेकिन z को यूज में नहीं ले सकता ना, यहाँ y को यूज में ले सकता हूँ लेकिन z को यूज में नहीं ले सकता, क्योंकि y तो अपने स्कोप में ही है, मेन फंक्शन पूरा उसका स्कोप है, तो y तो यूज में आ जाएगा यहाँ पर। जैसे कि अगर मैं y को प्रिंट करा रहा हूँ तो यहाँ पर प्रिंट हो जाएगा y, है ना। तो अगर मैं आपको किसी को समझ में फिर भी नहीं आ रहा, तो सपोज देखो अगर मैंने लिखा सी आउट y, तो ये जो है आपका करेक्ट है ना, सी आउट y। लेकिन अगर मैंने करा सी आउट आपका z, तो ये गलत है, क्योंकि z आपका स्कोप ही खत्म हो चुका है उसका ना, वो यहाँ पर क्रिएट हुआ था और यहाँ पर डेस्ट्रॉय हो चुका है। वेरिएबल जैसे क्रिएट होते हैं वैसे ही डेस्ट्रॉय भी हो जाते हैं। तो वो जैसे वेरिएबल इस स्कोप में यहाँ पर क्रिएट हुआ, तो जैसे इस स्कोप के बाहर अपन आएंगे, हमारा प्रोग्राम आएगा, तो वो वेरिएबल ऑटोमेटिकली डेस्ट्रॉय हो जाएगा,
है ना। तो वो वेरिएबल ही जो है डिस्ट्रॉय हो चुका है स्कोप से बाहर आते ही। तो यहाँ पर अगर आप z प्रिंट कराओगे तो एरर प्रिंट कर देगा, लेकिन y प्रिंट कराओगे तो कर देगा, और अगर आप x प्रिंट कराओगे वो भी प्रिंट हो जाएगा यहाँ पर, है ना। तो अगर मैं स्कोप यहीं पर ही खत्म कर दूं, इसको, ये वाला मेरा स्कोप है, तो अगर मैं यहाँ पर x प्रिंट करवाऊंगा तो बेसिकली ये x भी प्रिंट कर देगा मेरा, ठीक है। अगर मैंने x प्रिंट कराया तो बेसिकली मेरा x भी इस तरह से प्रिंट कर देगा, ठीक है। तो x और y दोनों प्रिंट हो जाएंगे क्योंकि दोनों का स्कोप है, लेकिन z का स्कोप नहीं है यहाँ पर, तो z प्रिंट नहीं होगा, z अपने स्कोप से बाहर आ चुका है, ठीक है। तो ये चीज, तो ये इस तरह से होता है स्कोप, है ना आपका, कि एक स्कोप के अंदर हम दूसरा स्कोप, इस तरह से मेन फंक्शन है वो अपना स्कोप है उसके अंदर। देखो स्टार्ट कहां से होते हैं, स्टार्ट स्कोप कहां से होगा, जहां से आप उसको डिक्लेयर करोगे। हो सकता है मेन फंक्शन के अंदर भी आपने क्या करा कि कुछ लाइन से लिख दी है और उस लाइन के बाद जो है आपने जो है वाई डिक्लेयर करा, है ना। तो इसका स्कोप यहां से ही स्टार्ट होगा, आप इसको यहां पर एक्सेस नहीं कर सकते ना। तो इसका स्कोप कहां से स्टार्ट होगा, जहां से आप उसको डिक्लेयर कर रहे हो, और अगर आपने इस किसी फंक्शन में कराया तो एंटायर फंक्शन उसके बाद जो है आप उसको यूज कर सकते हो ना। तो जहां से डिक्लेयर कर रहे हो वहां से, और फिर वो जो एंटायर स्कोप है उसमें अवेलेबल हो जाता है वो, ठीक। ये तो एक चीज हुई, ठीक है। अब देखो दूसरी चीज क्या होगी, जनरली हम क्या करते हैं कि सेम ही वेरिएबल नेम्स यूज कर सकते हैं इसी कंसेप्ट का यूज करके, है ना। ये जो कॉन्सेप्ट है अलग अलग का, तो इसी का कॉन्सेप्ट का यूज करके हम क्या करते हैं, सेम वेरिएबल नेम यूज कर लेते हैं। जैसे मान लो मैंने x इक्वल टू 10 लिया, तो यहाँ पर मैं इंटीजर दोबारा से x इक्वल टू एक वेरिएबल ले लेता हूँ जिसकी वैल्यू 20 कर देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पर एक और x ले लेता हूँ जिसकी वैल्यू मैं कर देता हूँ 30। तो अब अगर मुझे यहाँ पर देखो, तो इस केस में क्या हो गया कि ये सपोज मेरा हो गया, है ना। अब मैं इस वाले स्कोप की पहले बात कर लेता हूं कि ये वाला स्कोप है। अगर इस स्कोप में मेरे को x की वैल्यू प्रिंट करनी है तो मैं क्या करूंगा, सी आउट x, है ना। तो क्या वैल्यू प्रिंट होगी, 30 प्रिंट होगा, 20 होगा या 10 होगा, कौन सा प्रिंट होगा। इसका खुद का स्कोप है, और जो सबसे लास्ट वाला होता है ना, ये सबसे लास्ट में आ चुका है, तो इसका जो स्कोप है ये इसी का स्कोप है, तो इसी की वैल्यू सबसे पहले प्रिंट होगी। तो अगर यहाँ पे मैं सी आउट एक्स कराऊंगा तो 30 प्रिंट होगा, 20 और 10 जो है प्रिंट नहीं होगा यहाँ पर, ठीक है। तो फिर आप कहोगे कि भाई 20 कैसे प्रिंट कराएंगे, अगर मुझे इस स्कोप में 20 एक्सेस करना है तो क्या करूंगा, इसका वैसे डायरेक्टली कोई वैसे मेथड नहीं है, इसके लिए हम रेफरेंस वेरिएबल का यूज कर सकते हैं जो हमने कल पढ़े थे, ठीक है। लेकिन वो सब आपकी बुक में नहीं दे रखा है तो उस पर टच नहीं करेंगे। किसी को डाउट है, पूछना चाहता है तो फिर भी मेरे को बता देना, बता दूंगा, ठीक है। यहाँ हम एक रेफरेंस वेरिएबल क्रिएट करेंगे, देखा ही था कल हमने, और फिर उस रेफरेंस वेरिएबल को यहाँ यूज कर लेंगे, ठीक है। तो वो नहीं दे रखा बुक में, तो चलो उसके बारे में बात नहीं करते हैं। तो इस तरह से आप x का यूज करोगे तो वो उसी स्कोप वाला यूज हो जाएगा जो उसके इमीडिएट स्कोप है ना। तो आप ये कह सकते हो ये इमीडिएट स्कोप है, तो इमीडिएट स्कोप में जो भी वेरिएबल आपने यूज करा है x, उसी का ही जो है आपका प्रिंट हो जाएगा। और देखो, लेकिन अगर आपको x20 यूज करना है तो आप यूज नहीं कर सकते, लेकिन ग्लोबल वेरिएबल्स आप हर जगह यूज में ले सकते हो ना। उसका क्या तरीका होता है, ग्लोबल वेरिएबल का यूज करने का तरीका होता है कि आप स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर यूज करते हो, और x का यूज करोगे तो आपका 10 प्रिंट होगा। तो जहां पर भी आपको पूरे प्रोग्राम में कहीं पर भी x यूज करना है तो आप क्या करो, ग्लोबल वेरिएबल स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर का यूज लगा दो। अगर कॉन्साइड कर रहा है तो स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर यूज करो, x यूज कर लो, तो जो है आपका ग्लोबल को ही आपका प्रिंट करेगा, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पर x प्रिंट कराओगे तो 30 प्रिंट होगा, लेकिन स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर x लगाओगे तो आपका 10 प्रिंट होगा। 20 प्रिंट कराना है तो रेफरेंस वेरिएबल का यूज होता है, जो कि कॉन्सेप्ट हमारी बुक में अभी डिस्कस नहीं करा हुआ, ठीक है। तो ये सारा जो है देखो इसका कॉन्सेप्ट है। अगर मैं थोड़ा सा आपको पिक्टोरियली अगर इसको बताने की कोशिश करूं, या इसी में एक बार ये देखो कि अब ये दोनों लाइन जो है मैंने यहाँ पर प्रिंट करवाई, ठीक है, यहाँ पर, इसको छोड़ दो, इसका स्कोप खत्म हो गया। अब अगर मैं यहाँ प्रिंट करवा, देखो प्रिंट फंक्शन जो है आप केवल मेन फंक्शन में यूज में ले सकते हो, मेन के बाहर आप प्रिंट फंक्शन का यूज में नहीं ले सकते, ठीक है। तो हम जो कॉल करेंगे सी आउट सी इन वगैरह करेंगे वो हम मेन में ही कर सकते हैं, मेन के बाहर हम सी इन सी आउट वगैरह ये सब यूज नहीं कर सकते, ठीक है। वेरिएबल डिक्लेयर कर सकते हो लेकिन आप स्कैन और प्रिंट नहीं कर सकते ना, सी इन सी आउट नहीं कर सकते, स्कैन और प्रिंट है। तो मैंने एक अंदर वाले स्कोप में करवा के देख लिया, चलो यहाँ पर करवा के देखता हूँ कि अगर मेरे को x प्रिंट करना है, सी आउट अगर x करूंगा तो क्या होगा, अब 20 प्रिंट होगा, क्योंकि जो 30 का है वो तो स्कोप ही खत्म हो चुका है, 30 तो वेरिएबल क्रिएट होकर डिस्ट्रॉय भी हो चुका है। तो सी आउट x कराऊंगा तो 20 कर होगा, और अगर 10 कराना है तो वापस वही आपका स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर का यूज कर लो, तो आपका जो है वो 10 प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। ये आप कर लो तो ये जो है आपका 10 प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। ये 30 तो डिस्ट्रॉय ही हो चुका है, कोई भी तरीका अब हो ही नहीं सकता 30 को एक्सेस 30 को यूज करने का, क्योंकि ये तो डिस्ट्रॉय हो चुका है, इसके स्कोप को ही बाहर आ चुके हैं ना। जिसके स्कोप से ही आप बाहर आ चुके हो तो मतलब वो वेरिएबल ही डिस्ट्रॉय हो चुका है, क्रिएट भी हुआ डिस्ट्रॉय भी हो गया ना। जैसे ही हम यहाँ पर आए ये स्कोप क्रिएट हुआ, जैसे ही हम यहाँ पर आए ये वाली
ये वेरिएबल क्रिएट हुआ, जैसे ही हम यहाँ से बाहर आ गए इस लाइन पे तो ये वेरिएबल अपने आप डिस्ट्रॉय भी हो गया, ठीक है। तो ये सारी चीजें है ना, तो जो कंपाइलर वेरिएबल क्रिएट करता है वो अपने आप डिस्ट्रॉय भी करता है। अगर हमको कोई वेरिएबल क्रिएट करना है तो हम कैसे करते हैं, वो वेरिएबल क्रिएट कैसे करते हैं, हमने देखा था वो हम करते हैं डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन से, ठीक है। अगर हमको कोई वेरिएबल क्रिएट करना है या हमको कोई स्पेस क्रिएट करना है तो हम करते हैं डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन से। और फिर अगर हम खुद से क्रिएट करते हैं डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन से तो ये हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि हम उसको डिस्ट्रॉय भी करें, ठीक है। यहाँ कंपाइलर खुद से क्रिएट कर रहा है इस वेरिएबल को, है ना, हम केवल ये सिंटैक्स देते हैं, कंपाइलर खुद से जो है स्पेस क्रिएट करता है, तो वो खुद से ही डिस्ट्रॉय भी कर देता है स्कोप के बाहर आते हुए। अगर आप डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन का यूज करो, मैलॉक का यूज करो इस वेरिएबल को क्रिएट करने के लिए, मैलॉक फंक्शन का यूज करो इसी वेरिएबल को क्रिएट करने के लिए, तो आपको डिस्ट्रॉय भी फिर खुद से ही करना पड़ता है, फिर वो कंपाइलर डिस्ट्रॉय नहीं करता है उसको, ठीक है। तो ये चीजें हमने देखी थी, डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन के केस में बात करी थी इस बारे में अच्छे से। तो ये देखो आपका है, ठीक है। अब मैं थोड़ा सा अगर इसको पिक्चर की फॉर्म में आपको दिखाने की कोशिश करूं तो देखो आपको समझ में आएगा। यहाँ पर यहीं पर ही हम बात कर लेते हैं। ये बेसिकली ये आपका जो है ग्लोबल स्कोप है, कहां तक जा रहा है, चलो पूरा जा रहा है, ठीक है। ये आपका जो है आपका, ये जो है आपका पूरा एक ग्लोबल स्कोप आ गया ना, आपके एंटायर प्रोग्राम का स्कोप आ गया। इसको आप कह सकते हो कि यह जो है आपका ग्लोबल स्कोप है ना, ये ग्लोबल आपका स्कोप आ गया, ठीक है। ग्लोबल स्कोप में आपने एक वेरिएबल क्रिएट करा 10, चलो 10 आपने क्रिएट कर दिया, उस 10 का नाम है आपका x, ठीक है, ये आपने क्रिएट कर दिया। अब आप मेन फंक्शन में आए तो आपका एक और स्कोप क्रिएट हो गया मेन फंक्शन का, ठीक है। यहां तक ही ले लो चलो इसको, ये आपका मेन फंक्शन है, इसका जो है आपका एक स्कोप क्रिएट हो गया, ये आपका मेन स्कोप हो गया, ठीक है। और फिर दोबारा से आपने एक और वेरिएबल क्रिएट किया x इज इक्वल टू 20, तो क्या होगा कि दोबारा से एक और आपका एक और वेरिएबल क्रिएट हो जाएगा 20, उसका नाम भी जो होगा x होगा, लेकिन उसका स्कोप अलग होगा ना। तो देखो x ही नाम से आपके दो वेरिएबल क्रिएट हो चुके हैं। और फिर इसी के अंदर जब आप एक और जाओगे, एक तीसरा जो स्कोप क्रिएट करोगे, जो आपका लोकल स्कोप है, जो भी उसको बोलो, तो उसके अंदर भी क्या होगा, आप एक और वेरिएबल क्रिएट करोगे जिसकी वैल्यू डालोगे 30, उसका भी नाम होगा x, ठीक है। तो ये इस तरह से आपका स्कोप काम करता है ना। ये आपका ग्लोबल स्कोप है, उसके अंदर एक वेरिएबल है जिसकी वैल्यू है 10, उसका नाम है x, उसके अंदर मेन है फंक्शन, मेन स्कोप आ गया। उस मेन स्कोप के अंदर भी आपका एक और वेरिएबल क्रिएट करा आपने सेम ही नाम से, है ना, सेम ही नाम से, लेकिन आपके दो अलग अलग वेरिएबल है। रेफरेंस के केस में हमने देखा था कि एक ही वेरिएबल होता है, एक ही आपका स्पेस होता है दो अलग अलग नाम से, लेकिन यहाँ दो वेरिएबल है। तो ये आपका हो गया। फिर इसी के अंदर हमने ये वाला स्कोप क्रिएट करा, तो ये वाला एक आपका लोकल स्पेस आ गया ना, तो इसमें जो है 30, फिर इसमें भी आपने यही करा, एक और वेरिएबल क्रिएट करा। तो अब सेम ही नाम से आपके तीन अलग अलग वेरिएबल है ना, तीन अलग अलग वेरिएबल है आपके जिनका नाम तीनों का सेम है, तीनों की जो स्पेस है वो अलग अलग है। तो ये जो है आपका स्पेस होता है, ठीक है। तो जो स्पेस सबसे लास्ट में क्रिएट हुआ है वो सबसे पहले डिस्ट्रॉय भी होता है ना, इसी तरह से चलता है ना। फंक्शन कॉल भी ऐसे ही चलता है। जब भी देखो, एक और कॉन्सेप्ट इसमें बता देता हूं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है ना, और शायद आपको नहीं पता होगा, हमने यूजर डिफाइंड फंक्शन पढ़े थे तो शायद किसी को पता नहीं था वो। तो देखो इसी में बता देता हूं कि सपोज यहां पर मैंने एक फंक्शन कॉल करा, ठीक है, तो इस लाइन को तो रहने दो चलो, या फिर हटा देंगे क्योंकि नीचे हम देख नहीं पाएंगे, तो चलो ये मैं हटा देता हूं, ठीक है। ये तो आप समझ ही चुके हो कि किस तरह से आपके स्कोप्स डिक्लेयर होते हैं ना। देखो अब मान लो कि मैंने एक फंक्शन लिया यहाँ पर, और मैंने इस फंक्शन में कॉल करा, आपका फंक्शन है मेरा, और मैंने उस फंक्शन का चलो नाम दे दो कुछ भी आप, है ना, कोई भी नाम दे दिया उस फंक्शन का, फंक्शन ही रख लो, और क्या नाम रखना है, ठीक है, फंक्शन ही, मैंने एक फंक्शन का नाम ले लिया जिसका नाम है फंक्शन, और उसमें मैंने 20 पास करवा दिया, ठीक है। और यहाँ जो है मैंने नीचे जो है आपके एक फंक्शन क्रिएट करा हुआ है, ये वाला, ठीक है, ये मेरा एक इंटीजर फंक्शन है, ठीक है, इंटीजर ले लो कोई सा भी, और ये मैंने एक फंक्शन ले रखा है, और उसकी फंक्शन में ये मैंने इस तरह से पास करवा दिया इंटीजर x, ठीक है। और यहाँ पर जो है मैंने ये पास करवा दिया, तो देखो होगा क्या, आपका यहाँ पर x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 20 हो जाएगी, क्योंकि आप 20 पास करवा रहे हो x में ना। तो ये देखो कि आपका एक और स्पेस यहाँ पर क्रिएट होगा, इस वाले स्कोप को तो छोड़ दो, ये मैंने डिलीट कर दिया, है ना। और अब यहाँ पर क्या होगा, आपका एक और स्पेस स्कोप ऐसे क्रिएट होगा, और जिसमें एक x वेरिएबल होगा और उसकी वैल्यू होगी आपकी 20, ठीक है, इस तरह से, ठीक है। तो ये होता है ना। तो हुआ क्या, जैसे ही आपने किसी फंक्शन को कॉल किया, फंक्शन 20, उसमें वैल्यू 20 पास करी, तो होगा क्या, ये आपका नया फंक्शन कॉल हो जाएगा, फंक्शन है ना func नाम से एक फंक्शन है, ये नया फंक्शन हो गया, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, ये फंक्शन स्कोप हो जाएगा ना, ये इस फंक्शन का स्कोप हो गया।
तो इसमें क्या होगा, जो वैल्यू आपने पास करी 20, अगर आपने यहाँ x ले रखा है तो x नाम से एक वेरिएबल क्रिएट होगा और जो है 20 उसमें आपकी वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो इसीलिए होता क्या है कि देखो कि जब भी हम कोई वैल्यू पास करते हैं ना, लेकिन मैंने यहाँ पर भी x यूज करा हुआ है, यहाँ पर भी x, सपोज अब x की वैल्यू तो होगी क्या, जैसे ही मैंने पास करी x की वैल्यू 20 हो जाएगी, है ना। अगर मैं यहाँ पर प्रिंट करवाऊं सी आउट x प्रिंट करवाऊं तो बेसिकली ये 20 प्रिंट करेगा, है ना। अगर मैंने सी आउट x करा तो ये 20 प्रिंट करेगा क्योंकि मैंने 20 वैल्यू पास करी है। लेकिन अगर मैं यहाँ पर x इज इक्वल टू 10 कर देता हूं और फिर वापस आकर यहाँ पर सी आउट x करवाता हूं तो x की वैल्यू अभी भी 20 ही रहेगी। देखो मैंने क्या करा, फंक्शन को कॉल करा, उसकी वैल्यू डाली 20, ठीक है। x की वैल्यू 20 है, मैंने फंक्शन में 20 वैल्यू डाली, ठीक है। 20 वैल्यू गई यहाँ पर इस फंक्शन में, तो इस वाले फंक्शन में जो x है, x एक वेरिएबल क्रिएट होगा और उसकी वैल्यू 20 आ जाएगी, ठीक है। मैंने प्रिंट कराई तो 20 आएगी, है ना वैल्यू। फिर मैंने उस वैल्यू को चेंज कर दिया। अब मैंने क्या करा, इस वैल्यू को चेंज कर दिया, इसको 10 कर दिया ना, और मैं वापस आ गया, ठीक है। फिर मैं वापस आ गया और वापस आके मैंने यहाँ पर जो x की वैल्यू प्रिंट कराई तो x की वैल्यू अभी भी यहाँ पर 20 ही रहेगी, क्योंकि ये x और ये x दोनों अलग अलग x है ना। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है फंक्शन में, जो कि जनरली मिसअंडरस्टूड होता है स्टूडेंट्स के द्वारा ना, कि ये वाला x है और ये वाला x है, दोनों अलग अलग वेरिएबल है। इसीलिए जब मैं फंक्शन यूजर डिफाइंड फंक्शन करा रहा था, मैंने x की जगह a लिया था ताकि लोग कंफ्यूज ना हो जाए, है ना। तभी मैंने x की जगह a लिया था और a को प्रोग्राम किया था ताकि लोग कंफ्यूज ना हो जाएं। लोग सोचने लग जाते हैं कि दोनों सेम वेरिएबल है, लेकिन वो दोनों अलग अलग वेरिएबल है ना, है सेम ही नाम से, ये भी x नाम से, ये भी x नाम से, लेकिन ये दोनों अलग अलग वेरिएबल है। तो अगर मैंने इसमें x इक्वल टू 10 करा और मैं वापस गया तो यहाँ पर x इक्वल टू 10 नहीं होगा, यहाँ पर x इक्वल टू 20 ही रहेगा, ठीक है। ये है। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, किसी को समझ में नहीं आया क्योंकि बहुत एडवांस कॉन्सेप्ट है ये, तो आप इस लेक्चर को बार बार सुन लेना, लेक्चर में अपलोड कर दूंगा, ठीक है। इस लेक्चर को बार बार सुनना, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है। अब देखो बस ये जो है एक टॉपिक तो जो है पूरा कवर हो चुका है, ठीक है। इसी वजह से, क्योंकि ये जो ब्लॉक्स होते हैं ना सी प्लस प्लस में, ये जो हम ब्लॉक्स का यूज कर रहे हैं, कॉन्सेप्ट ऑफ ब्लॉक्स है ना, इसी वजह से इसको ब्लॉक स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी बोलते हैं, ठीक है। अब मैं स्क्रीन शेयर करके फटाफट से रीड कर देता हूं जो भी हमने पढ़ा है उसको, आप उसके प्रॉपर नोट्स तैयार कर लो, फिर नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। देखो देखो तो पहला है हमारा यही वाला है ना, इंट्रोडक्शन, ठीक है। अब ये देखो इसमें पढ़ना चालू करो, वही है, ऑल ऑपरेटर्स इन सी आर ऑल्सो वैलिड इन सी प्लस प्लस, ओके। इन एडिशन सी प्लस प्लस इंट्रोड्यूसेस सम न्यू ऑपरेटर्स, दे आर ऑल्सो इंसर्शन ऑपरेटर हो गया, एक्सट्रेशन हो गया आपका, और स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर्स हो गया ना, तीनों पढ़ चुके हैं अपन। देखो इंसर्शन पता ही है क्या करता है, एक्सट्रैक्शन पता ही क्या करता है, स्कोप रिजोल्यूशन में देखो क्या लिखा हुआ है, सी प्लस प्लस इज ए ब्लॉक स्ट्रक्चर्ड लैंग्वेज, सेम वेरिएबल नेम कैन बी यूज्ड इन डिफरेंट ब्लॉक्स। अभी हमने भी यही करा कि सेम वेरिएबल नेम x जो है अलग अलग ब्लॉक्स में यूज करा है, ठीक है। Same variable name can be used in different blocks. The scope of a variable is in between the point of its declaration and the end of the block containing the declaration. तो यही मैंने बताया कि जहां पर ब्लॉक एंड हो जाएगा वहां पर आपका स्कोप भी एंड हो जाएगा, और जहां पर आपने डिक्लेयर करा वहां से स्टार्ट होगा उसका स्कोप। A variable declared inside of the block containing the declaration, a variable declared inside a block is local to that block. The scope resolution operator is used to access global variable. यही मैंने बताया कि ग्लोबल वेरिएबल को एक्सेस करना है तो आप स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर का आप यूज में लेते हो, ठीक है। ये आपका वही प्रोग्राम है जो मैंने आपको बताया है, इसको अच्छे से आप देख लेना बाद में। अब देखो, अच्छा इसमें एक दो चीज और रह गई है, न्यू ऑपरेटर और डिलीट ऑपरेटर, ठीक है। तो ये भी देख लेते हैं कि न्यू ऑपरेटर क्या होता है और डिलीट ऑपरेटर क्या होता है। देखो पहले यहाँ चलो पढ़ लो कि क्या लिखा हुआ है। द ऑपरेटर अलोकेट सफिशिएंट अमाउंट ऑफ मेमोरी टू डेटा ऑब्जेक्ट एट रन टाइम, ठीक है। वही है न्यू ऑपरेटर, बेसिकली वही करता है जो आपका मैलॉक करता था, और डिलीट ऑपरेटर आपका बेसिकली वही करता है जो आपका फ्री फंक्शन करता था, ठीक है। लेट मी स्टॉप शेयरिंग द स्क्रीन। हमारे पास अभी 1-2 मिनट बचे हैं तो मैं फटाफट से आपको ये कॉन्सेप्ट भी एक्सप्लेन कर देता हूँ, दो चीजें रह गई है। देखो जैसे हमारा मैलॉक फंक्शन है ना, एग्जैक्टली सेम ही काम आपका जो करता है वो क्या करता है, न्यू ऑपरेटर करता है। तो आप ये समझ सकते हो कि आपका जो सी का जो मैलॉक है, पूरा बोर्ड ही गंदा हो रखा है, चलो कोई नहीं,
देखो, तो जो आपका मैलॉक है ना, मैलॉक इन सी बेसिकली वही आपका जो है न्यू ऑपरेटर करता है आपका इन सी प्लस प्लस। वहां मैलॉक एक फंक्शन होता था, यहाँ पर न्यू एक ऑपरेटर होता है, ठीक है। वहां सेम ही काम आप एक फंक्शन से करते थे जिसका नाम मैलॉक था, जो कि आपको मेमोरी एलोकेट करने के काम में आता था ना। तो अगर किसी ने मैलॉक पढ़ा है तो उसको तुरंत समझ में आ जाएगा कि क्या हम कर रहे हैं। यहाँ पर क्या होता है, न्यू नाम से होता है लेकिन फंक्शन ना होकर एक ऑपरेटर होता है, ठीक है। यहाँ पर क्या होता है, डिलीट करते हैं हम फ्री से, और यहाँ क्या होता है, डिलीट एक ऑपरेटर होता है उससे करते हैं, ठीक है। कैसे करते हैं, मैलॉक और फ्री तो आपने यूज करे हुए हैं। देखो, इसमें अगर आपको एक इंटीजर वेरिएबल डिक्लेयर करना है, वही अभी जो मैं डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन की बात कर रहा था कि खुद से कैसे वेरिएबल डिक्लेयर करोगे, तो देखो कैसे लिखोगे, इंटीजर, पूरा बोर्ड ही गंदा हो रहा है यार। देखो कैसे लिखोगे, आप लिखोगे इंटीजर पॉइंटर पी न्यू इंटीजर, है ना, ऐसे बस इंटीजर पॉइंटर पी इज इक्वल टू न्यू आपका इंटीजर, बस ये है। तो आपका क्या होगा कि p एक आपका वेरिएबल, एक पॉइंटर क्रिएट हो जाएगा बेसिकली किसी का ना। p इसी तरह से पॉइंटर से जब भी डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन करते हैं तो पॉइंटर का ही यूज में लेते हैं, ठीक है। तो ये इस तरह से आपका एक नया वेरिएबल क्रिएट हो जाएगा जिसका जो पॉइंटर होगा बेसिकली p होगा ना। तो ये बिल्कुल एक पॉइंटर क्रिएट हो गया, जैसे पॉइंटर वर्क करते हैं वैसे ही वर्क करेगा, ठीक है। तो इस तरह से आप एक इंटीजर वेरिएबल जो है डायनेमिकली डिक्लेयर कर सकते हो। इसको फ्री करना है तो क्या लिखोगे, डिलीट p कर दो, DELET, डिलीट पी कर दो। तो ये जो है फ्री वाला हो गया, जैसे आप फ्री करते थे यहाँ पर ये डिलीट हो गया। वहां पर तो हम पूरा एरे डिक्लेयर करते थे, यहाँ पर आप केवल एक डेटा टाइप इंटीजर को ही डिक्लेयर करके देख रहे हो। आगे हम देखेंगे, हम पूरा एरे भी क्रिएट करके देखेंगे दोनों से ना। न्यू से डिलीट से हम पूरा पूरा एरे क्रिएट करेंगे, पूरा पूरा एरे डिलीट करेंगे, जैसा हम मैलॉक और फ्री में कर रहे थे। अभी केवल इंटीजर का केस लेकर दिखा रखा है तो हम भी केवल वही करते हैं, ठीक है। इसको देख लो, स्क्रीनशॉट ले लो, नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे ना, नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे फिर। बस ये है आपका पूरा हो गया चैप्टर, चैप्टर का ये टॉपिक पूरा हो गया। अब अगला टॉपिक स्टार्ट करेंगे अगली